Now let's study the next part, and next part is the eddy current. Okay. ईडी करंट। अभी ईडी करंट क्या होता है देखिए, whenever a metal block is placed in changing magnetic field, okay, changing magnetic field, or whenever a metal block is subjected to changing magnetic flux, electron in that free electron in that metal block starts revolving in circular paths, okay, and large amount of circular current is produced, which is called as eddy current. Okay, मतलब क्या होता है देखिए, eddy current मतलब क्या है। Suppose here there is a metal block like this. Okay, this is a metal block. Now suppose this metal block is subjected to a changing magnetic field or changing magnetic flux. If this block is subjected to changing magnetic flux, यहाँ पे क्या होता है, मेटल मतलब क्या होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमना चालू करते हैं, लाइक दिस, दे स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन concentric circles like this. So free electrons, every metal block has large number of free electrons. These free electrons are initially in random motion. पहले इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे, दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है एंड जब वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, these electrons which are otherwise moving in all possible direction, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, मतलब सभी सर्कुलर मोशन का एक ही सेंटर होगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूमना चालू करते हैं और इसको बोलते हैं ईडी करंट। ओके, सो करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस circular motion of the electrons, current produced due to this circular motion of the electron is called as eddy current. And इसको eddy current क्यों बोलते हैं, because this is similar to eddies in the water. eddies in the water पता है ना, eddies या फिर whirlpool in the water. ओके, मराठीमध्ये याला काय म्हणतात, पाण्यातला भवरा जो असतो, पाण्यामध्ये भवरा जो असतो. ओके, similar to that the electrons are moving in circular orbit. So this is similar to eddies in water and therefore it is called as eddy current. Now this current is invented by scientist Foucault. Okay, and therefore this is also called as Foucault current. तो यहाँ पे देखिए, every metal block consists of large number of every metal block consists of large number of free electrons. Every metal block consists of large number of free electrons which are moving randomly. So every metal block में क्या रहेंगे, large number of free electrons रहेंगे, वो initially random motion में रहेंगे. Random motion मतलब they are moving in all possible directions with different velocities, okay, which are moving randomly. When varying magnetic flux is applied, to this block, to metal block, यहाँ पे क्या होते हैं, free electrons starts moving in concentric circles,
Okay, when varying magnetic flux is applied to the metal block, free electron starts moving in concentric circles. Okay, starts moving in concentric circles, and the electric current produced due to circular motion of electrons, is called as eddy current. Okay, so once again देखिए, every metal block consists of large number of free electrons which are moving randomly. Okay, when varying magnetic flux is applied to this metal block, what happens? These free electrons starts moving in a concentric circle. The electric current produced due to the circular motion of electron is called as eddy current. Okay, अब ये circular path में ही क्यों घूमते हैं? क्योंकि ये लेंज लॉ ओबे करने के लिए घूमते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेटल ब्लॉक रखा है, हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स मेटल ब्लॉक मूव करना चालू किया. ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स मेटल ब्लॉक हमने मूव करना चालू किया, तो क्या हो जाएगा? उसको अपोजिशन क्रिएट होना चाहिए. उस नॉर्थ पोल को क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोजिशन क्रिएट होना चाहिए. एंड अपोजिशन क्रिएट होने के लिए यहाँ पे मेटल ब्लॉक में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन सर्कल. इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? इट इज लाइक अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एंड सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एक्ट लाइक अ मैग्नेट. एंड ड्यू टू दिस सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंदर एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट नॉर्थ पोल विल अपोज द मोशन ऑफ आउटसाइड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. ओके, सो नॉर्थ पोल का मोशन अपोज करने के लिए यहाँ पे भी देखिए, अगर एक मैग्नेट हम नियर द मेटल ब्लॉक मूव करने का प्रयत्न करेंगे तो वो इजीली मूव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा इजीली मूव? क्योंकि जब मैग्नेट नियर हम मेटल ब्लॉक मूव करेंगे तो वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और एडी करंट्स आर लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल. ओके, and that current carrying coil opposes the motion of that magnet. Okay, the electric current produced due to the circular motion of electron is called as eddy current. And why the word eddy is used here? Because this circular current is similar to eddies in water. Okay, the circular motion of electrons क्या रहता है? Electrons is similar to eddies in bracket whirlpool in water, and therefore it is called as eddy current. Okay, it is also called as Foucault current. It is also called as Foucault current. Okay, because it is invented by scientist Foucault. It is discovered by scientist Foucault, and therefore it is called as Foucault current. Okay, फिर एक बार समझ में आया कि देखिए ईडी करंट मतलब क्या होता है. जब भी किसी मेटल ब्लॉक को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन दैट मेटल ब्लॉक स्टार्ट रिवॉल्विंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. मतलब पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में रहेंगे, लेकिन जब उस पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, and this circular motion of these electrons is similar to eddies in the water, and therefore this current is called as eddy current. क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पाथ में जब घूमते हैं तो क्या होता है? वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ना. ठीक है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में घूमते हैं तो और क्या होता है, यहाँ पे एक इमेजिनरी करंट कैरिंग कॉइल जनरेट होता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में होते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे एक इमेजिनरी करंट कैरिंग कॉइल क्रिएट होता है, मतलब अंदर एक मैग्नेट क्रिएट होता है। ओके, मेटल ब्लॉक के अंदर एक मैग्नेट क्रिएट होता है, जो मैग्नेट का क्या करता है, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, बाहर के चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। सो वंस अगेन देखिए, एवरी मेटल ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are moving randomly. When varying magnetic flux is applied to metal block, free electrons starts moving in concentric circles. The electric current produced due to circular motion of electron is called as eddy current. The circular motion of electron is similar to eddies, whirlpool in water, and therefore it is called as eddy current, and it is also called as Foucault current. Okay, so once again देखिए, suppose ये metal block है, suppose this is a metal block. ओके, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इफ नॉर्थ पोल इज मूव टुवर्ड्स दिस, इफ नॉर्थ पोल इज मूव टुवर्ड्स दिस मेटल ब्लॉक, मेटल का ब्लॉक यहाँ पे होने चाहिए, मूव टुवर्ड्स दिस मेटल ब्लॉक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे लाइक दिस, स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ. ओके, अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने से चालू करेंगे, एंड यहाँ पे एक कॉइल क्रिएट होगा जो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा. मतलब नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, एंड नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो उसकी मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर मेटल ब्लॉक के अंदर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक पोल को मेटल ब्लॉक के नजदीक जब हम लाते हैं तो उसको अपोजिशन क्रिएट होता है. ओके, देयर इज always opposition to the motion of that outside magnet. Okay, so what are the conditions to produce eddy current? Conditions to produce eddy current. Conditions to produce eddy current. Okay, first condition is that metal block is kept stationary and magnetic field, मतलब varying magnetic field is applied. Okay, varying, that is changing magnetic field is applied to stationary metal block. Otherwise यहाँ पे varying magnetic field is applied to stationary metal block, और otherwise क्या करना चाहिए, magnetic field is stationary or magnetic field is uniform, and in that uniform magnetic field metal block is moving. इस कंडीशन में भी एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, when metal block moves through uniform magnetic field, ओके. सो ईडी करंट कब प्रोड्यूस होगा, इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओके, कौन सी कंडीशन, आइदर मेटल ब्लॉक अगर स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी करना चाहिए वहां पे, अदरवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब फिक्स्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने मेटल ब्लॉक को अगर मूव किया तब भी क्या होता है, मेटल ब्लॉक में ईडी करंट डेवलप होता है. ओके, लेट्स सी नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईडी करंट. Characteristics of ED current. Characteristics of ED current. Characteristics of ED current. First characteristic is that ED current is always in circular form, or ED current always produces concentric circular current. ED current is concentric circular current. ओके, ईडी करंट में क्या रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे और उस सर्कल पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. सो ईडी करंट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट होता है. उसके बाद यहाँ पे जितने भी सर्कुलर पाथ रहेंगे वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ओके, द सर्कुलर पाथ्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. द सर्कुलर पाथ्स never intersect each other. So this is the second characteristic. Third characteristic is that the magnitude of this ED current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Magnitude of ED current is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Magnitude of ED current is directly proportional to rate of change of magnetic flux. मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रैपिडली मतलब फास्टली चेंज हो रहा है तो ईडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स स्लोली चेंज हो रहा है तो ईडी करंट कम प्रोड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट they never produce sparking. They never produce sparking. Sparking क्या होता है, जब किसी सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होता है एंड सडनली हम स्विच ऑन या फिर ऑफ करते हैं तो यहाँ पे स्विच में क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं स्पार्किंग. तो यहाँ पे ईडी करंट में कभी भी स्पार्किंग क्रिएट नहीं होता. नेक्स्ट property related to ED current is that ED current produces heats. ED current produce heat in that metal block. Heat in metal block. मतलब due to ED current, because ED current is also a type of current, and when a current flows through any conductor, what happens, heat is always produced. So therefore यहाँ पे क्या होता है, due to this ED current, heat is produced in the metal block, and this heat is given by formula, amount of heat produced is given by formula I square into RT. Okay, so heat produced किस पर dependent है, current का square, resistance and time. इन तीन पैरामीटर पर heat produced dependent है. ओके, अगर करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन हीट प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना जरूरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होना जरूरी है. मतलब मेटल ब्लॉक का कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए. अगर रेजिस्टेंस नहीं है
तो इजीली हीट उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 6, ईडी करंट opposes the relative motion. ED current opposes relative motion. ED current opposes relative motion. ED current opposes relative motion मतलब क्या होता है? जब कोई north pole is when a north pole is moving towards a metal block, then motion of that north pole is opposed. Okay, मतलब नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो इजीली उसको नजदीक आने नहीं देता, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इजीली उसको दूर जाने नहीं देता। मतलब मैग्नेट एंड मेटल ब्लॉक के बीच जो रिलेटिव मोशन रहेगा, उस रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, ये अपोज करेगा ईडी करंट। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईडी करंट। ओके, लेट्स सी नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ ईडी करंट। एप्लीकेशंस ऑफ ईडी करंट। ओके, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ईडी करंट यूज किया जाता है। फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है? डेड बीट गैल्वानोमीटर। डेड बीट गैल्वानोमीटर मतलब इसको बोलते हैं गैल्वानोमीटर डैम्पिंग। गैल्वानोमीटर डैम्पिंग। अभी गैल्वानोमीटर डैम्पिंग या फिर डेड बीट गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर को जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो सडनली करंट अप्लाई करने के बाद उसका सडन डिफ्लेक्शन हो सकता है। सडन डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर कैन बी पॉसिबल जब हम करंट अप्लाई करते हैं गैल्वानोमीटर को, बिकॉज गैल्वानोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ड्यू टू सडन डिफ्लेक्शन हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या करते हैं, उस कॉइल के अंदर एक हम एल्यूमिनियम प्लेट रखते हैं कॉइल के अंदर। ओके, उस कॉइल के अंदर एल्यूमिनियम प्लेट रखने से क्या हो जाएगा, जब एल्यूमिनियम प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने का प्रयत्न करेगा तो एल्यूमिनियम प्लेट में क्या हो जाएगा, ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दिस ईडी करंट विल अपोज द सडन मोशन ऑफ दैट कॉइल। मतलब ड्यू टू ईडी करंट, बाय यूजिंग ईडी करंट हम क्या कर सकते हैं, गैल्वानोमीटर कॉइल का सडन मूवमेंट जो होता है, सडन मूवमेंट को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। मतलब डेड बिट गैल्वानोमीटर में क्या होता है, करंट अप्लाई करने के बाद उसका पॉइंटर इजीली स्केल पर मूव होता है, स्लोली मूव होता है, नॉट इजीली, एक्चुअली इट इज स्लोली मूव्स ऑन द स्केल। ये सडन मूवमेंट उसका नहीं होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू ईडी करंट, बिकॉज ईडी करंट क्या करता है, सडन मोशन ऑफ द कॉइल को अपोज करता है। अगर ईडी करंट डैम्पिंग नहीं है, गैल्वानोमीटर में अगर डैम्पिंग नहीं है तो क्या होता है, करंट अप्लाई करने के बाद सडनली पॉइंटर क्या होता है, फाइनल रीडिंग के थोड़ा सा आगे जाता है और वहां पे ऑसिलेट करता रहता है थोड़ी देर, एंड बाद में फाइनल रीडिंग पर आता है। तो सडन मूवमेंट ऑफ दैट पॉइंटर और सडन मूवमेंट ऑफ दैट कॉइल इन द गैल्वानोमीटर शुड बी अवॉइडेड। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, वहां पे कॉइल में एक एल्यूमिनियम प्लेट लगाते हैं। जब कॉइल रोटेट करना चालू हो जाएगा तब वो एल्यूमिनियम प्लेट भी रोटेट करना चालू करेगा। और एल्यूमिनियम प्लेट तो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा ना, वहां पे हॉर्शू मैग्नेट रहता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट हॉर्शू मैग्नेट इज अप्लाइड ऑन दैट एल्यूमिनियम प्लेट। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगेगा तो उसमें ईडी करंट डेवलप हो जाएंगे, एंड ईडी करंट की प्रॉपर्टी क्या है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मतलब क्या होता है, वो जो ईडी करंट प्रोड्यूस्ड इन एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लेट है, वो क्या करेगा, उस कॉइल को सडनली रोटेट होने नहीं देगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज डेड बीट गैल्वानोमीटर। डेड बीट गैल्वानोमीटर मतलब क्या होता है, उसमें करंट अप्लाई करने के बाद उसका जो पॉइंटर है वो स्लोली मूव होता है और फाइनल रीडिंग पर आके रुकता है। ओके, जिसमें डैम्पिंग नहीं है। अगर डेड बिट गैल्वानोमीटर नहीं है तो क्या होता है, देयर इज सडन मूवमेंट ऑफ द कॉइल व्हेन करंट इज अप्लाइड टू द कॉइल। सेकंड इज द इलेक्ट्रिक ब्रेक्स।
इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स कहाँ पे यूज करते हैं? रेलवे में। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन रेलवेज। सो इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी क्या करते हैं? ईडी करंट का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पर वर्क होता है? यहाँ पे ऐसा एक मेटल डिस्क रहेगा, दिस इज अ मेटल डिस्क, एंड इसको this metal disc, suppose this is a circular metal disc and it is rotating with certain speed। और इस मेटल डिस्क को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट सपोज यहाँ पे रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका नॉर्थ पोल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट करने के बाद अगर ये डिस्क इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रही है तो क्या हो जाएगा? व्हेन अ मेटल ब्लॉक इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होता है? ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। एंड ईडी करंट क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट करने के बाद ये जो डिस्क है उसके मोशन को अपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। एंड अपोजिशन क्रिएट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे। मतलब जब हमें इस रोटेटिंग डिस्क को ब्रेक अप्लाई करना है तब यहाँ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ऑन करना है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करने के बाद क्या होता है? this metal disk is rotating in this uniform magnetic field, and whenever a metal block or a metal disk is rotating or moving in a uniform magnetic field, उसमें क्या होता है? ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। एंड ईडी करंट क्या करता है? हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है मतलब इसके रोटेशनल मोशन को अपोजिशन क्रिएट करेगा, एंड देयरफॉर डिस्क डज नॉट मूव, और उसको उसके मोशन को अपोजिशन क्रिएट हो जाएगा, वहां पे ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। ओके। थर्ड एप्लीकेशन। सो दिस एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्टली इन केस ऑफ नीट और सीईटी there can be question that which of the following is application of ED current or which of the following is not the application of ED current। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आए हैं। ठीक है। तो इसके लिए सभी एप्लीकेशन ईडी करंट के पता होने चाहिए आपको। थर्ड एप्लीकेशन इज द मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड को किसी रीजन में, मैग्नेटिक शील्डिंग मतलब क्या है? टू प्रिवेंट द मैग्नेटिक फील्ड टू एंटर इन अ पर्टिकुलर रीजन। ओके। टू प्रिवेंट मैग्नेटिक फील्ड टू फ्रॉम एंटरिंग इनटू पर्टिकुलर रीजन, मतलब पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को एंट्री अगर हमें नहीं देनी है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? ईडी करंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस। ओके। अभी इंडक्शन फर्नेस का प्रिंसिपल क्या है देखिए। सपोज वंस अगेन दिस इज अ मेटल ब्लॉक एंड इसको हमने क्या किया? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होता है? यहाँ पे अंदर ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। अगर इस मेटल ब्लॉक को सफिशिएंट रेजिस्टेंस है तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ईडी करंट बहुत ज्यादा है तो क्या होता है? दिस हीट इज so much that this metal block can completely melt। मतलब इंडक्शन फर्नेस में क्या करते हैं? हम मेटल्स को मेल्ट करते हैं। ठीक है। एंड इस मेल्टिंग के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे ईडी करंट का यूज हम कर सकते हैं बिकॉज ईडी करंट प्रोड्यूसेस हीट इनसाइड दैट मेटल ब्लॉक। इंडक्शन फर्नेस। आफ्टर दैट इंडक्शन हीटर और कुकर। इंडक्शन कुकर शायद आपके घर में रहेगा, इंडक्शन हीटर या फिर इंडक्शन कुकर, which works on the principle of ED current। So in इन इंडक्शन हीटर और कुकर क्या रहता है? वहां पे ऐसा एक इलेक्ट्रिक कॉइल रहेगा, इस तरह से एक कॉइल रहेगा, उसके ऊपर मेटल प्लेट रहेगा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का या फिर दूसरे लो रेजिस्टेंस का जो मेटल है उसका एक प्लेट रहेगा। एंड इसके ऊपर हम क्या रखेंगे? हमारा यूटेंसिल।
या फिर वेसल रखेंगे। जब हम इस कॉइल में से करंट पास करेंगे, नाउ दिस कॉइल इज सब्जेक्टेड टू एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट को ये कॉइल कनेक्ट की जाते हैं। ड्यू टू एसी करंट यहाँ पे क्या होता है, व्हेन एसी करंट इज पास्ड थ्रू दिस कॉइल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एंड यहाँ पे अगर करंट अल्टरनेटिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड ड्यू टू दिस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेसल है उस वेसल के अंदर, यहाँ पे उसके बेस में, उसका जो बेस है, ओके, उसके बेस में क्या होता है, यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। एंड ईडी करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट। तो यहाँ पे हीट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, डायरेक्टली इन दैट वेसल क्रिएट होता है। मतलब नीचे से हीट सप्लाई नहीं की जाती। इंडक्शन कुकर हमारे जो घर में होता है उसमें क्या होता है, हीट नीचे से सप्लाई नहीं की जाती, हीट इज डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड इन दैट वेसल। ओके, उस वेसल में ही हीट क्रिएट होती है। वेसल गर्म होता है एंड वेसल के अंदर जो भी यहाँ पे फूड रखा है वो कुक हो जाता है। ओके, so in this way this induction heater or the cooker works. So induction heater or cooker works on the principle of ED current. Okay, so इस वेसल के नीचे क्या होती है, एक कॉइल होती है that is connected to AC supply. AC मीन्स यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट रहेगा। अगर करंट अल्टरनेटिंग रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग रहेगा। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हेनेवर एनी मेटल इज प्लेस्ड इन दिस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उस मेटल में डायरेक्टली क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो मेटल का वेसल रहेगा डायरेक्टली उस वेसल में ही ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ईडी करंट प्रोड्यूसेस हीट इन दैट वेसल ओनली, and therefore there is no loss of heat. Directly we get the heat in that vessel only. That is ED current, that is induction heater और induction cooker बोलते हैं। उसके बाद है that is speedometer। हमारे बाइक में जो एनालॉग स्पीडोमीटर होता है, एनालॉग मतलब पॉइंटर वाला, बाइक में या फिर किसी भी व्हीकल में जो स्पीडोमीटर रहता है, एनालॉग वाला मतलब पॉइंटर वाला, डिजिटल नहीं, तो उसमें क्या होता है, ईडी करंट यूज किया जाता है। सो बाय यूजिंग ईडी करंट वी कैन मेजर स्पीड आल्सो। ओके, सो दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। उसके बाद सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग मतलब मेटल सरफेस, किसी मेटल का सरफेस अगर हमें हार्ड करना है तो हार्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हार्डनिंग प्रोसेस मतलब क्या है, तो मेटल सरफेस को क्या करते हैं, टू ए सर्टन हाई टेम्परेचर उसको हीट करते हैं और उसको सडनली क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, सडनली कूल करते हैं। तो जब किसी भी सरफेस को हाई टेम्परेचर को हीट करते हैं और सडनली कूल करते हैं तो सरफेस क्या होता है, हार्ड होता है। इसको बोलते हैं सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, बाय यूजिंग ईडी करंट्स उस सरफेस को क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं और उसके बाद उसको सडनली कूल करते हैं। सो सरफेस हार्डनिंग में भी ईडी करंट यूज होता है। और एंड देयर आर सम बायोमेडिकल यूजेस, biomedical uses are also there of the ED current. Okay, so in biomedical uses also ED current is used. Okay, so these are the various applications of ED current. ये हमेशा ध्यान में रखिए। Okay, this is very important thing. What are the application? Deadbeat galvanometer, electric brakes, magnetic shielding, induction furnace, induction heater cooker, speedometer,